Very good evening to one and all. So we are back again with a with a very interesting and exciting presentation events. Today we have four presenters, and all of them are going to present something really very interesting. So before we begin our presentations, let us have a very small round of introduction. Like in the introduction, you may give your full name, where you belong, what is your profession, and when have you joined TISA. So let us begin with Mr. Singla. Hello everyone. Uh, my name is Ankit Singla and I am from Rohtak, Haryana, and I am a chartered accountant and mm, uh, I am a credit manager in HDFC Bank, and I have been associated with TISA from last 2.5 years. Yeah, thank you. Thank you, Mr. Singla. Coming to Mr. Sujay. I'm Sujay Joseph. I'm from Jamshedpur, Jharkhand, and I was born and raised over here. I'm working in my family business, and I'm also part-time consultant in an NGO in Delhi. Thank you, Mr. Sujay. Now coming to Mr. Ram Mahapatra. No, Mr. Ram, you are not audible. Maybe you can try joining back once again. So coming to Mr. Shatrughan Chaudhary. Hello, I'm audible. Yes, 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 loud and Yeah, clear. yeah. I'm Satrugan Chaudhary. I have an agency, Online Booster. Okay, and I specialize in Google and Facebook ad. I help businessmen to grow their business to my proven strategy. Okay, and yeah, I joined to TESA and because I want to improve my uh, stammering or communication skill and fear of public speaking. Yeah, and over to you. Thank you. Thank you, Mr. Shatrughan. No, Ram, you are still not audible. I guess we should disconnect this meeting and join back once again. Yes, yes. Yeah. Hello. Yeah, Yes, hello. sir. Yeah, Hello. now you're audible. Okay, Yeah. okay. Thank you, sir. Yeah. So, mm, good evening, sir. May I start my introduction after some time, sir? Actually, I was busy in setting my audio. There was some internal disturbances, so I was totally absent-minded while fixing that. So, is there anyone else, or I have to start now? You can give your introduction now. Yeah, fine. So, my name is Ram Mahapatra, and I am of 24 years old. Uh, I am from Odisha state and Bhubaneswar city, and now I am a final year medical student at KIMS College of Bhubaneswar. Uh, that's it. Thank you. Thank you, Mr. Ram. So guys, let us begin our presentations. And before we begin, I just want to remind you two simple things. First of all, do not hide your stammering while you are presenting, because this is a very safe zone.
Secondly, if you are familiar with any TISA technique, then please apply it as much as possible. And if due to some reason you are not aware about the TISA technique, then please follow rule one, which is do not hide your stammering, since this is a safe place. So, who would like to present first? Hey, can I? Yeah, please. Definitely. You can share your screen. Yeah, definitely. Let me share. And one more request to everyone: when the presenter is speaking, please do not interrupt the presenter, and please make sure that your mic is off. Thank you. Thank you. Okay, yeah. Hi everyone. This is Sattugan Kumar Chowdhury. Okay. Thank you so much, this family for giving a chance to present my presentation. Yeah, I'm going to tell about regarding digital marketing, because it's my field. Okay, I know very well about digital marketing ads and how to start. Okay, I am to cover like digital market once again, please. Uh, Sorry to interrupt you. Could you please turn off your video, because we are facing because your voice is breaking a lot. Uh, So maybe if you turn off your video, then we will be able to hear you properly. okay, you are not audible clearly. Now I'm audible. Yes, yes. Okay, yeah. Hi everyone. I'm going to tell like the digital marketing, and I will tell you कि किसे start करना चाहिए और किसे नहीं start करना चाहिए. Okay, and yeah, digital marketing or beginners guide to thriving a career. Okay, basic understanding and career opportunity. Okay, created by Satrughn, and my name agency name is Online Booster. Okay, and one second. Maybe there is just some issue. Yes. Okay. About us, Online Booster. At Online Booster, we specialize in Google and Facebook and lead generation, marketing automations, and landing page creation to help business grow online. Okay. With data-driven strategy, we have already worked with 30 plus clients and generated revenue 30 lakhs revenue for client. Okay. And this is my website, onlinebooster.com, and we are available on all social media: Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn. Okay, and yeah, let's start. Introduction to digital marketing. What is digital marketing? Let you tell you in a simple words. Okay, and can I hide this because it's disturbing me? Maybe. Can you see this icon? Which I one? don't know. I'm okay. Yeah, I'm audible now. Yes, yes. Okay, yeah, sure. Mm. Okay, let's start. Let's understand what is digital marketing. First, let me tell you in a simple words. Okay, I'm not going to give complicates. Digital marketing एक ऐसा तरीका है जिसमें हम इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं, जैसे लाइक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब को यूज करते हैं. ठीक है. एंड ईमेल मार्केटिंग, ये सब को यूज करता हूँ, तो इसके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं. हम डिजिटल प्रोडक्ट को यूज करके हम मार्केटिंग जो करते हैं ना, ये डिजिटल मार्केटिंग में आता है. पहले ट्रेडिशनल भी मार्केटिंग हो रहा था, जो बैनर और बिल बोर्ड वो लगा रहता था, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग था. ओके. And yes, let's understand importance. Okay, 66% of business increase their digital marketing budget in 2024. ठीक है. तो ये 66%, तो क्योंकि कैन यू गैस गाइस कि इतने परसेंट
user spend average of 6 hours per day, ठीक है। ऑलमोस्ट इंटरनेट यूजर्स स्पेंड करता है 6 आवर, एंड हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम पर्टिकुलर अपने ऑडियंस, पोटेंशियल ऑडियंस के पास हम पहुंच सकते हैं इफेक्टिवली, ओके। एंड फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एआई एंड ऑटोमेशन, ठीक है। आपको को पता ही होगा एआई का कितना अब ये एआई का टाइम आ गया। पहले नहीं था मार्केटिंग में इतना एआई का यूज नहीं हो रहा था, अब ऑलमोस्ट काम एआई के थ्रू होता है डिजिटल मार्केटिंग में, ओके। तो पोटेंशियल बहुत है इसमें, हम एआई एआई भी यूज कर सकते हैं एंड ऑटोमेशन भी यूज होता है। ऑटोमेशन के थ्रू हम सीक्वेंस ईमेल भेज देता हूँ, यदि आप कहीं पे सब्सक्राइब करते हो या कहीं पे आप साइन अप करते हो तो आपके पास ईमेल ऑटोमेटिक आता रहता है, ये मैनुअल नहीं रहता है, आपके पास ऑटोमेशन किया रहता है बैकएंड में, इसके थ्रू आया रहता है। लेट मी शो यू एआई की पावर क्या है। यू सीजी कंटेंट बना सकते हो, यूजर जनरेटेड कंटेंट। लेट मी शो यू एग्जांपल। आपको you can see this is AI, okay, it's totally look like कि ये बिल्कुल ह्यूमन है, ठीक है। देखो यू कैन सी क्या दिस, आपने कभी सोचा है कि किस तरह लोग अपने कौशल और ज्ञान का इस्तेमाल करके दिस इज AI जनरेटेड कंटेंट, ओके। तो आप कभी ये डिफरेंस ये निकाल पाओगे ये AI बेस्ड कंटेंट है या ओरिजिनल ह्यूमन बनाया है कंटेंट। तो इस टाइप का कंटेंट हम बना सकते हैं और ऑलरेडी से यूज कर रहा है, मार्केट में यूज हो रहा है, इवन आई एम आल्सो यूजिंग, ओके। एंड वीडियो इज अ की। अब जितना भी मार्केटिंग पर्सन को देखते हो, इवन आई एम वीडियो क्रिएटर, आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो, ओके। एंड ऑलमोस्ट मार्केटर्स और ऑलमोस्ट एजेंसी आर यूजिंग और ऑलमोस्ट कंपनी आर यूजिंग वीडियो, बिकॉज वीडियो बहुत इफेक्टिव है अपन नॉलेज शेयर करने के लिए एंड रिच अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए बहुत इफेक्टिव वे है। हम कम से कम पैसे में फ्री में हम बहुत सारे पर्सन के पास हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। एंड वॉइस सर्च पहले 2000 के ये अप्रोक्स लेते हैं, 2022 में इतना वॉइस सर्च काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा एआई इस पर ट्रेंड नहीं था कि वॉइस से मैं सर्च करूं, ज्यादा रेशियो नहीं था, कम था। बट अब वॉइस के थ्रू हर टाइप का कंटेंट निकाल सकते हैं और कहीं से भी। तो इसका कंट्रीब्यूशन होने वाला 50% ऑफ सर्च बाय 2025, ओके। एंड पर्सनलाइजेशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स कि मैं कुछ ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ? नहीं, great, great. I, Your speed is great. okay, yeah. Okay, yeah. Because you told like only 15 minutes I have time. That's why I'm going too fast. Okay. And for personalizations, data-driven marketing will be dominate. देखो आप पर्सनलाइजेशन मीन्स ये होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो ना, यही प्रोडक्ट आपको दिखेगा बार बार, यही प्रोडक्ट आपको टारगेट करूंगा। आपका डेटा लेके आप जो जो चीज में इंटरेस्टेड हो, मैं ये सब प्रोडक्ट आपको पर्टिकुलर किसी भी यूट्यूब, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किसी पर भी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये पर्सनलाइजेशन डेटा हो गया। एंड लेट मी टेल यू दिस इज या okay, you can't say maybe, yeah. And parts of digital marketing, let me add, there is not a head option, yeah, parts of digital marketing मतलब only एक डिजिटल मार्केटिंग नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ब्रॉड स्कोप है, ठीक है। जिसमें डिजिटल मार्केटिंग यदि कोई कहता है तो इसमें ये सब कुछ आता है इससे, ये SEO, PPC, SMM, ठीक है, ये सब कुछ आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ब्रॉड हो गया। जैसे आईटी में बहुत सारे स्कोप होता है अलग अलग फील्ड का, तो ऐसे डिजिटल मार्केटिंग अलग अलग स्कोप होता है, ठीक है, अलग अलग जॉब होता है। तो देखो SEO हो गया, SEO ये हो गया जो आप किसी भी गूगल पर सर्च करते हो, एनडीए कोचिंग या कुछ भी सर्च करते हो, तो आपका जो भी वेबसाइट दिखाता है ये SEO के थ्रू दिखाता है, ओके। एंड PPC Google and Facebook ads. Let me show you example. If I can show, this is PPC ad, okay। देखो एनडीए कोचिंग मैं सर्च किया
तो यू कैन सी दिस इज एड, एनडीए प्रिपरेशन आफ्टर 12th क्लास। तो ये पीपीसी ऐड हो गया जो गूगल के थ्रू चला सकते हैं, ठीक है। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक, यदि एक बार क्लिक करोगे तो इसका पैसा कट जाएगा जो भी चला रहे हैं, ओके। एंड फेसबुक एड्स, जो फेसबुक एड्स जो इंस्टाग्राम पे ऐड देख रहे हो, जो फेसबुक पर देख रहे हो, ठीक है, ये फेसबुक एड्स के थ्रू चलाते हैं, ओके। एंड SMM मीन्स क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में पूरी सोशल मीडिया आ जाएगा, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, लिंक्डइन आ गया एंड ट्विटर आ गया, ठीक है। हम जो फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, तो ये सब सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। एंड remote, this is remote work, okay, yeah। एंड कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग आज का बहुत पॉपुलर हो रहा है कि जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, ब्लॉग्स। अब ब्लॉग का इतना ट्रेंड नहीं है जितना वीडियो का है। ऑलमोस्ट वीडियो क्रिएट करता है, क्योंकि आज का पर्सन वीडियो कंज्यूम करना चाहता है, विजुअल कंटेंट देखना चाहता है, न कि टेक्स्ट कोई रीड करना चाहता। तो ब्लॉग ये हो गया जो अपन नॉलेज शेयर करना चाहता है टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में, दे कैन डू दैट, ओके। यदि वीडियो ये हो गया जो हम वीडियो के फॉर्मेट में अपन नॉलेज एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, तो ये वीडियो फॉर्मेट हो गया। एंड इंफोग्राफिक मीन्स होता है एक ग्राफिक हो गया, ये ग्राफिक हो गया। हम किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं तो पूरी इन्फो मतलब पूरे डिटेल के बारे में इस टॉपिक पर एक ही ग्राफिक में बना के दे देगा, तो ये इन्फोग्राफिक हो गया, ओके। एंड सेकेंड थिंग है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ही है ये ईमेल मार्केटिंग। आप इवन ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। एंड अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही का पार्ट्स है, ठीक है। तो इसमें स्पेशली अफिलिएट मार्केटिंग ये होता है आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, बट आप किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, इसके इसके बदले आपको ये हो गया पार्ट्स ऑफ डिजिटल। यस, आर यू सेइंग समथिंग? आई ओके। मेरी आवाज अब वो स्कोप स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ओके। तो हम समझते हैं मार्केट ग्रोथ कितना है डिजिटल मार्केटिंग। यदि लेट्स सपोज मैं एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूं तो इसका ग्रोथ कितना है। तो ये एजु रियलाइज गाइस कि इंडिया में अभी डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो ठीक ठाक काम कर लिया इसका भी ठीक ठाक एजेंसी या ठीक ठाक कंपनी बन सकता है और ठीक ठाक अपन बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का इंडस्ट्री हर साल 14% एनुअली ग्रोथ रेट है इसका, और इवन ज्यादा होगा टाइम टू टाइम, ठीक है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, मगर अप्रोक्स के करीब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड बिजनेस डिमांड, बिजनेस में बहुत डिमांड है। आप देख रहे हो आजकल सब ऑलमोस्ट बिजनेस करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट ऑलमोस्ट बिजनेसमैन को ये नहीं पता होता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्या इम्पैक्ट डाल सकता है इसके बिजनेस पे, कितना ग्रो कर सकता है इसका बिजनेस ड्यू टू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो 75% प्रायोरिटाइज डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। ऑलमोस्ट बिजनेस 75% डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो बैनर बिल बोर्ड पर लगाना, जैसे मेट्रो में आप देखते हो बिल बोर्ड लगा रहता है, बैनर लगा रहता है, रोड साइड में बिल बोर्ड लगा रहता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आजकल मार्केटर इतना बिजनेस यूज नहीं कर रहा है जितना ये बिजनेसमैन डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहा है, ओके। एंड फ्रीलांसिंग बूम, ठीक है। फ्रीलांसिंग भी इवन यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है। और 35% इंक्रीज हुआ था लास्ट 3 इयर्स में, अभी और इंक्रीज होगा। आप कहीं से भी, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का स्किल है, इवन यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग और यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ओके। एंड अब देखो सब कुछ तो समझ में आ गया। एंड इसके बाद शुड स्टार्ट कैरियर, देखो शुड स्टार्ट कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग। यदि प्रोज में आते हो
तो आप इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इस क्यों स्टार्ट करना चाहिए हमें डिजिटल मार्केटिंग कैरियर? ओके, हाई डिमांड, डिमांड बहुत है डिजिटल मार्केटिंग के। ठीक है, तो आपका फ्लेक्सिबल कैरियर पार्ट्स भी रहेगा इसमें। ठीक है, आप स्विच भी कर सकते हो डिफरेंट से डिफरेंट में, एंड वर्क रिमोटली। आप इवन कहीं से भी चले जाओ, जस्ट यू नीड ओनली लैपटॉप एंड वाईफाई, you can work from anywhere. Even you don't need to go कंपनी एज अ डेली बेसिस या रेगुलर बेसिस। ठीक है, कहीं से भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, एंड नो डिग्री रिक्वायर्ड। इवन आफ्टर 12th से आफ्टर 10th क्लास यू कैन स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग कैरियर। ओके, जस्ट आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस यू कैन स्टार्ट। ठीक है, इसमें डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट रिक्वायर्ड स्किल, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का स्किल और थियोरिटिकल नॉलेज होना चाहिए। एंड हाई इनकम पोटेंशियल, इसमें एक्सपीरियंस के साथ आपका एक पोटेंशियल ठीक ठाक है, आपको ठीक ठाक पैसा मिलेगा। ओके, सैलरी में। एंड कॉन्स, कॉन्स क्या है? यदि आप विलिंग टू लर्न, आपके अंदर एक बार मैं सीख लिया फिर दोबारा मैं नहीं सीखना चाहता हूँ। ठीक है, यदि ऐसे माइंडसेट है तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज डोंट स्टार्ट कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको हर सेकेंड या हर एवरी डे यू हैव टू लर्न न्यू थिंग। यू विल गेट लॉट ऑफ चैलेंज। ओके, यदि चैलेंज सोल्व करने में बहुत एक्साइटेड हो और न्यू चीज सीखने में बहुत एक्साइटेड हो, ग्रैब करने में एक्साइटेड हो, देन यू कैन स्टार्ट इन अ डिजिटल मार्केटिंग कैरियर। ओके, like require continuous learning and adapt adaptability. Okay, it requires continuous learning and adaptability. Okay, and involving trend, आपको ट्रेंड के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यदि कुछ भी ट्रेंड में है तो आपको जस्ट आपको एक्ट करना पड़ेगा इस पे। एक्ट मीन्स आपको इस पर देखना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, क्या मैं बिजनेस को हेल्प कर सकता हूँ ये ट्रेंड में कि नहीं। तो ट्रेंड के साथ आप इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सक्सेस, सक्सेस डिपेंड ऑन स्किल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। यदि आपका जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, जितना ही आपका स्किल सही है, तो आपका सक्सेस बहुत अच्छा होगा इसमें। ओके, एंड व्हाट क्वालिफिकेशन क्या है इसका? लेट मी टेल यू, वन सेकेंड, it's not working. Okay, yeah, I'm audible. Hello. Yes, yes, Hi. yes. Yeah. You are loud Uh, and clear. some it's sometimes not working properly. Okay, yeah. What's qualification? Okay. Uh, let me. Hello. Did he left the meeting? I guess there was some technical problem from his side. Okay, so maybe let us wait for him for a few for. So let us begin our presentation with a new presenter. Just a minute. Shatrughan has joined. Just a minute. Yeah. Mr. Shatrughan, could you please summarize your presentation within 5 minutes? Mr. Shatrughan?
Am I audible? Maybe there is some technical problem from Shatrughan's side. So yeah, so then now let us welcome our second presenter, Mr. Ankit Singla. Hello everyone. So thank you Rohil ji for this opportunity. मैं एक बात बोलना चाहूंगा जैसे मुझे पीपीटी बनाने का टाइम नहीं लगा तो मैं डायरेक्टली नेट से ही शो करूंगा पीपीटी सो आई वांट टू से सॉरी फॉर दैट सो यस No worries, Mr. Singla, but still that is pretty good that you showed your commitment and then you found some another way to present. So then that is really great. या so thank you for the appreciation uh, uh, so uh, so my so my topic uh, for the today's presentation is preparation on interview आई गेस हम सब यंग हैं जो भी आज प्रेजेंटेशन इवेंट में है तो हम सब ने फेस किया है कि इंटरव्यू के दौरान जो भी हमें एंजाइटी होती है स्ट्रेस होती है तो उन उन सब चीजों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे कि हम हम उनको कैसे कम कर सकते हैं और हम लाइक उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं और जैसे कि हम स्टेमरर हैं तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं एक इंटरव्यू से पहले सो आई गेस यस सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ व्हाट इज एन इंटरव्यू इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है कि एक कॉन्वर्सेशन होती है बिटवीन द टू पीपल्स तो बेसिकली क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो पर्सन होता है वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यूई से बेसिकली वो किसी के भी रिगार्डिंग हो सकते हैं लेट्स सपोज अगर आप एक न्यूज न्यूज चैनल वाले इंटरव्यू की बात करो तो वहां पे बेसिकली जो भी सेलिब्रिटी आता है उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो जॉब के लिए बेसिकली आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है या जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसको चेक करने के लिए जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब उसमें पुट किए जाते हैं सो इंटरव्यू इज बेसिकली conversation between the two person which are the interviewer and the interviewee so yeah this this is I already discussed like इंटरव्यू अलग अलग हो सकते हैं जैसे कि एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू या मे बी एक जॉब 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 के लिए कैंडिडेट का इंटरव्यू सो यस एंड मूविंग ऑन द टाइप ऑफ द इंटरव्यू तो बेसिकली इंटरव्यू के टाइप्स क्या होते हैं वैसे तो अलग अलग हो सकते हैं देर इज नो लिमिट बट मैं उसमें से कुछ को अभी हाईलाइट करना चाहूंगा जिसमें से फर्स्ट है फेस टू फेस इंटरव्यू फेस टू फेस इंटरव्यू इज अ वेरी वेरी कॉमन इंटरव्यू बेसिकली फेस टू फेस इंटरव्यू में क्या होता है आपकी ड्रेसिंग सेंस से लेके आपकी बॉडी लैंग्वेज और मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है और ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है लाइक टू जज द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो
जैसे ही हम रूम में एंटर करते हैं, तो रूम में एंटर करने से लेके चेयर पर बैठने तक में ही हमारा 25 से 30% तक इम्प्रेशन मतलब बन चुका होता है कि वेदर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस पर्सन और नॉट। लाइक वहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा काम आती है। सो आई थिंक फेस टू फेस इंटरव्यू इज द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट कॉमन कॉमन टाइप ऑफ इंटरव्यू। सो लाइक द नेक्स्ट इज बिहेवियरल इंटरव्यू। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। ये ये आपका फेस टू फेस इंटरव्यू का ही पार्ट हो सकता है। बिहेवियरल इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको कुछ कंडीशंस डाला जाता है, या आपको कोई ऐसी सिचुएशंस में डाला जाता है कि जिसमें वो चेक करते हैं कि आपका बिहेवियर क्या होगा, या वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं। जैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने पिछले 2 साल में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, और वो सारे चैलेंजेस के साथ में आपने कैसे कोप अप किया, या इफ यू आर फ्रेशर, तो आपसे पूछा जाता है कि आपको मतलब आपकी स्टडी में क्या क्या चैलेंजेस आए, या लाइक आपकी फैमिली में आपने क्या क्या डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की। बेसिकली वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं कि इफ इफ यू आर इफ यू आर फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करोगे। सो बिहेवियरल इंटरव्यू इज also a kind of interview. So the next one is phone interview, जिसको हम टेलीफोनिक इंटरव्यू भी बोलते हैं। बेसिकली ये फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है। जैसे मैंने भी अभी बहुत इंटरव्यू दिए हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब सीवी आता है इंटरव्यूअर के पास, तो उसको कुछ सीवीज उसमें से शॉर्टलिस्टेड करने होते हैं। तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू बेसिकली टेलीफोनिक इंटरव्यू ही होता है, जिसमें बेसिक पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है, बेसिक उसके नॉलेज को चेक Sorry किया to जाता interrupt you. Actually, your screen is not visible. है। ओके, Will you share your screen once again? ओके, ओके, वेट अ सेकंड। Yeah. आई थिंक इट्स अ नेट इशू। वेट अ सेकंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। या सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो सो फोन इंटरव्यू जो होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसमें आपका बेसिक असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसमें बेसिकली जिसमें आपकी बेसिक पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। और उसके बाद आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, या उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। एंड वन इज पैनल इंटरव्यू। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि 3 से 4 इंटरव्यूअर एक साथ बैठते हैं, और वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। जैसे क्या होता है कि वन बाय वन वो अपने वो अपने क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, और लाइक और वो लाइक वो जो भी आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, तो उसमें से वो क्रॉस क्रॉस। सो लाइक इट इज a kind of interview. And the another one is exit interview. बहुत बार क्या होता है कि जब आप एक कंपनी को छोड़ते हो, तो आपसे रीजंस पूछे जाते हैं कि व्हाई यू आर लिविंग दिस कंपनी, ताकि वो
कंपनी के कल्चर को इम्प्रूव कर सके, या जहां भी इश्यू हो वो इस चीज को इम्प्रूव कर सके। तो दिस इज कॉल्ड अ एग्जिट इंटरव्यू। एंड द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस इंटरव्यू। ये इंटरव्यू हमने बहुत ही कम देखा है लाइक इन द रियल लाइफ, बट ये होता है कि बेसिकली हम बेसिकली इंटरव्यूअर चेक करता है कि आप अंडर प्रेशर में कैसा परफॉर्म करोगे। जैसे बहुत सारी जॉब होती है जिसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। बैंक के जैसे मैं अभी बैंक में काम करता हूँ, तो बैंक में भी प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वो चेक करते हैं कि कितना प्रेशर आप हैंडल कर सकते हो। लाइक आप नेक्स्ट लाइक अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तो आपको किस बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा। एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो कि स्ट्रेस इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। एंड एंड द नेक्स्ट वन इज अ टेक्निकल इंटरव्यू। ये जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस होती हैं या जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है उससे रिलेटेड ही ये आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, अ, जिसमें कि आप जो भी जॉब में काम करने वाले हो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द नीड फॉर एन इंटरव्यू। लाइक इंटरव्यू की जरूरत ही क्या है, मतलब हम डायरेक्टली किसी पर्सन को रिक्रूट क्यों नहीं कर सकते। लाइक व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। सो so the number one the, so the number one point is to judge the overall personality of the candidate। लाइक एक एक पर्सन आपकी कंपनी के साथ अभी काम करने वाला है, तो आपको नहीं पता कि उस पर्सन का बिहेवियर कैसा है। तो आपको उसको जज करना है कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या रहेगी, वो आपकी कंपनी के मतलब रेलेवेंट काम कर भी पाएगा या नहीं। सो द नंबर वन पॉइंट इज दैट। एंड एंड द एंड द सेकंड वन इज कि जो भी आपके टास्क हैं जो आप चाहते हो कि एप्लीकेंट वो सारे टास्क को परफॉर्म करे, तो क्या वो परफॉर्म भी कर पाएगा या नहीं। बेसिकली हम जो भी सामने वाला कैंडिडेट है, हम उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करते हैं कि वो कॉम्पिटेंट है भी या नहीं। और हम जज करते हैं कि क्या उसके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं, क्या उसके पास नॉलेज है, और फिर क्या उसने ओनली पढ़ाई की है, या कुछ उसके पास एक्सपीरियंस भी है। बेसिकली हम ये चीज चेक करते हैं कि वो एक फिट है या नहीं है, कंपनी के लिए परफेक्ट फिट है या नहीं है। लाइक उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। एंड दीज आर द सम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठने वाले हो। जस्ट लाइक मैं उसमें से एक दो बताऊं। सो द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। लाइक इस क्वेश्चन की तो आपको यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस भी मिल जाएंगी, कि आपको दो Sorry to दो interrupt मिनट you once again, but I guess your screen is once again not visible. Like, can the other participants see the screen, or it is only me who is not able to see I it? can see it, I think. I can see it. Okay, Others, I don't know. I'm not. but like, Visible, sir. okay, It's okay. visible Now, to okay. Sorry, me sorry. too. Okay, so Yes, okay, sorry. My visible. bad. Please continue. ओके। एंड अभी मेरी प्रेजेंटेशन 2 मिनट में खत्म भी होने वाली है, तो नो इश्यू अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो मैं मतलब ट्राई करूंगा कि सब चीजें बोलूं। तो बेसिकली क्या होते हैं कि कुछ मतलब कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, जो कि आपको नेट पे भी इजीली मिल जाएंगे। सो डू एंड डोंट। लाइक आपको, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, डू नॉट अज्यूम एनीथिंग। हम बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम इंटरव्यू में जाने से पहले बहुत सारी चीजें खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं। हम खुद से ही
जजमेंट बना लेते हैं। तो आई थिंक हमको वो नहीं करना चाहिए, और हमको ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड दोनों टाइप के क्वेश्चन पुट अप करने चाहिए, जिससे कि इंटरव्यूअर को पता चले दैट ही इज आल्सो active listener, like he is going to be a perfect fit। और आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लाइक इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा, तो हम जल्दबाजी में बोलना शुरू कर देते हैं। हम लाइक उसके क्वेश्चन को भी अ, खत्म नहीं होने देते हैं। सो आई थिंक हमको अपनी बारी का वेट करना चाहिए, एंड उसके बाद हमको जाना चाहिए। सो अब मैं बात करूंगा कंक्लूजन की, कुछ फाइनल टिप्स। तो आप, जैसे कि हम सबके साथ होता है कि हम मल्टीपल कंपनीज के इंटरव्यू एक ही टाइम पे देते हैं, बट हम एक चीज में गलती करते हैं कि हम अ, किसी पर्टिकुलर कंपनी के इंटरव्यू में बैठने से पहले उसी कंपनी के बारे में पढ़ना भूल जाते हैं। लाइक ये वाली गलती मैंने भी की है। बट आपको, जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का इंटरव्यू दो, तो आपको पर्टिकुलरली उसी के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। लाइक आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी मतलब देख सकते हो, बेसिक नॉलेज भी ले सकते हो, जैसे कि कंपनी के फाउंडर मेंबर कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है, या अभी फिलहाल में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मैनेजमेंट के मेन पर्सन्स कौन है, या अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसका स्टॉक मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी कंफर्म करनी चाहिए। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास लोकेशन आई है इंटरव्यू की, बट हम डायरेक्टली उसी दिन जाते हैं कि जिस दिन इंटरव्यू हमारा शेड्यूल होता है। तो बहुत बार हमें वो लोकेशन ढूंढने में दिक्कत होती है, और जिस वजह से हम वहाँ पे लेट पहुंचते हैं। तो आई थिंक हमको एक दिन पहले ही, इफ अगर ये चीज हो पाए, तो हमको एक दिन पहले वहां पर जाकर अपना कंफर्म करना चाहिए, डेट एंड टाइम, मेरे को वहां जाने में कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे ट्रैफिक होता है तो क्या होगा, कैसे होगा। एंड द अनदर पॉइंट इज, आपको अपना फोन भी ऑफ करना चाहिए। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था कि बीच इंटरव्यू में ही फोन बजने लगा था, तो लाइक वो बहुत ही गलत इंप्रेशन डालता है इंटरव्यू। एंड नो वेट फिश हैंडशेक्स, लाइक बहुत बार लगते हैं हम स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हम हैंडशेक हमारा प्रॉपर नहीं होता। बट आपका हैंडशेक प्रॉपरली फर्म ग्रिप होनी चाहिए, लाइक क्योंकि हैंडशेक का लाइक इफेक्ट होता है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। सो आई थिंक ए फर्म ग्रिप शुड बी देयर। एंड क्वेश्चन, लाइक लास्ट में इंटरव्यूअर, सब लाइक इन ऑलमोस्ट द इंटरव्यूज, इंटरव्यूअर एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप भी हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हम उसमें स्किप कर देते हैं कि लाइक आई डोंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछने चाहिए, लाइक मेरी ग्रोथ क्या होगी, या मुझे कब या मुझे कब प्रमोशन मिलेगा, लाइक द बेसिक क्वेश्चंस हमको जरूर पूछने चाहिए। एंड द बॉडी लैंग्वेज, जो कि मैंने ऑलरेडी बात की है कि आपकी फेस पे स्माइल होनी चाहिए, आप रिलैक्स भी लगने चाहिए, सामने वाले को भी लगने चाहिए। एंड द जॉब ऑफर, और बहुत बार क्या होता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया, सब कुछ लाइक एवरीथिंग गोन वेल, तो लास्ट में आपको जॉब ऑफर मिलता है। तो इफ यू आर 100% श्योर, तो आप उसी टाइम बोल सकते हो। नहीं तो आप एक दिन का टाइम लो, 2 दिन का टाइम लो, अच्छे से सोचो कि आप वो काम करना चाहते हो, और उसके बाद आप अपनी कंफर्मेशन दो, एंड देन स्टिक टू इट। लाइक जो भी आपकी कंफर्मेशन है, हाँ या ना, उसके साथ में स्टिक करो। एंड या दैट्स द
presentation. I want to say thank you, like for this 15-minute presentation आपने सुना, and अगर आपको कोई भी question हो तो आप you can ask. Thank you. So I have one question for you. So as you said that you have given many presentations. So in any presentation, did you felt that your stammering was a barrier to get that job? इंटरव्यू लाइक ये होता है, मैंने खुद भी फेस किया है। बहुत बार क्या होता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में ही स्टेमर कर जाते हो, तो मतलब सामने से कोई भी बोलता नहीं है इंटरव्यूअर, बट समटाइम्स आई फील कि वो फर्स्ट 1 या 2 मिनट में ही राय बना लेते हैं दैट ही इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस, एंड देन दे and ultimately then they reject you. So I think in some cases it may be the reason, stammering may be the reason. Yeah. Okay, thank you. If anyone wants to ask him any question, then please feel free to turn on your mic. Okay, so I guess that was it. So thank you, Mr. Ankit, for your wonderful presentation. Uh, now, now who would like to present? Okay, yeah, sure, Mr. Ram. So you have 15 minutes to give your presentation, and if you are not able to complete it, then you will get 5 minutes to wrap up your presentation. So please share your presentation. Yeah. Uh, sir, sir, am I audible Yes, properly? yes. Yeah, yeah. तो सबसे पहले तो सर आपको और बाकी मेंबर्स को गुड इवनिंग, एंड thank you so much for giving me this opportunity to present and sharpen my speaking skills. um, तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर शुरू करता हूँ, या शेयर हुआ? यस, इज इट विजिबल सर? Happiness Yes, and mental peace. Yeah. yes. So, yeah. So, dear sir and other members, myself, Ram from Odisha. I am a final year medical student, and now I am going to start my टॉपिक, एंड मैंने इसको एआई के मदद से ही इजीली बना दिया था, एंड मैंने इस प्रेजेंटेशन के जो मैटर को as much as possible मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश किया है, ताकि मेरा जो स्पीकिंग थोड़ा अच्छे से ही स्लो स्पीड में मैं बोल पाऊँ, मुझे थोड़ा जल्दबाजी में बोलने की स्टेज ना पड़े। तो ये 15 मिनट में ये तो बहुत है, हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है हैप्पीनेस एंड मेंटल पीस, मतलब कि हम कैसे हम लोग खुश हो सकते हैं, एंड कैसे हम लोग हमारा जो मेंटल स्टेट को एक बैलेंस्ड और शांतिमय स्टेट में
रख सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली एक पाथ या जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें कि हम इनर जॉय एंड कामनेस पे थोड़ा ज्यादा ही फोकस देंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, इसमें हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि हमको सिखाएंगे रिगार्डिंग हैप्पीनेस, मेंटल पीस। और हम लोग उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के कुछ डेफिनेशन को हम समझेंगे। और उसके फिर जो होते हैं इन्फ्लुएंसेस एंड स्ट्रेटेजीज टू अचीव देम, मतलब कि उन कॉन्सेप्ट्स का हम डेफिनेशन समझेंगे। फिर उसका उसका मतलब हमारे मेंटल स्टेट पे क्या असर हो सकता है, हम लोग फिर उसे समझेंगे। फिर लास्ट में हम उन टेक्निक्स को हम लोग कैसे स्मूथली अपने लाइफ में उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे कि मेंटल पीसफुल स्टेट को अचीव करने के लिए हम क्या क्या कुछ स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है, वो है कि अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस। मतलब कि हमें सबसे पहले तो इतना बेसिक पहले हमको समझना होगा कि हैप्पीनेस का क्या मीनिंग है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि इसमें हम लोग जो भी सब टॉपिक लेंगे, हम लोग सबसे स्टार्टिंग में उस टॉपिक का हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे। उसके बाद हम लोग उसका क्या असर हो सकता है उसे समझेंगे अगले स्टेप में। फिर इस लास्ट स्टेप में हम उसे इम्प्लीमेंट करने की कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी को समझेंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप है कि हैप्पीनेस का क्या डेफिनेशन है। तो हैप्पीनेस एक ऐसा स्टेट ऑफ वेल बीइंग है। मतलब एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि हम जिसमें कि हमारा इमोशन एक मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टैंड करता है। और वो रेंज शुरू होता है फ्रॉम कंटेनमेंट एंड अंटिल इंटेंस जॉय। मतलब कि नॉर्मल शांतिपूर्ण स्टेट से हमारा माइंड शुरू होता है। और उसका जो पूरा हायर जो स्टेट, मतलब जो उसका पूरा मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट है हैप्पीनेस का, वो ऑब्वियसली है इंटेंस जॉय।
मतलब कि बहुत ज्यादा ही अंदर से खुश होना, अपने आप को लेके सेटिस्फाइड महसूस करना। तो हैप्पीनेस बहुत बार इसी बात पे कॉन्सेंट्रेट या रिफ्लेक्ट करता है कि हम इंसान लोग या इंडिविजुअल पर्सन्स जो भी हैं, वो अपने आप से और अपने लाइफ से वो कितना सेटिस्फाइड हैं, वो अंदर से कितना खुश हैं। अगला हमारा जो स्टेप है वो है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कौन कौन सा एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हैप्पीनेस या मेंटल स्टेट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, मतलब कि हमारा जो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा है पर्सनल रिलेशनशिप्स, मतलब कि हमारा दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ, मतलब कि हम जिस सोसाइटी में हैं उस सोसाइटी के लोगों के साथ हमारा जो रिलेशनशिप कितना अच्छा है। तीसरा है फाइनेंशियल स्टेट या स्टेबिलिटी, मतलब कि हम फाइनेंशियली कितना हम लोग स्टेबल या अनस्टेबल हैं। फिर अगला आता है हेल्थ। हेल्थ हमारा कैसा है, अच्छा है कि हमको कुछ बीमारी है। फिर पर्सनल अचीवमेंट्स, मेरे हिसाब से ये जो पर्सनल अचीवमेंट जो एक फैक्टर है, इसका बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। बट हम लोग थोड़ा इसको अंडर करके देखते हैं। बट पर्सनल अचीवमेंट्स, मतलब कि अगर हम लोग अपने ही मेहनत से कुछ अचीव अगर करेंगे तो उसका जो सेटिस्फेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड हमें जो महसूस होगा, वो हमारे इस लाइफ के बाकी छोटे मोटे जो स्ट्रेसेस को बहुत बार साइड कर सकता है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि इतने जो फैक्टर्स हैं ये हमारे लाइफ में हैप्पीनेस या जॉय को ये कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस के बारे में एक बहुत ही कॉमन वाला मीथ है, मतलब कि मिस कंसेप्शन है। लोग मोस्टली मानते हैं कि हैप्पीनेस मोस्टली एसोसिएटेड या लिंक्ड होता है वेल्थ के साथ। मतलब कि लोग मोस्टली मानते हैं कि जो इंसान अमीर है वो शायद बहुत ही ज्यादा ही वो हैप्पीनेस की स्टेट में है, मतलब कि उसका कुछ दुख ही नहीं है। बट साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग साइंटिफिकली और
स्पिरिचुअली भी देखेंगे तो एक इंसान का फाइनेंशियल स्टेट अगर बहुत भी अच्छा है, अगर हम लोग अंबानी जी को भी एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेंगे तो उनके भी लाइफ में बहुत सारा दुख होगा, परेशानियां होगा। मतलब कि अल्टीमेटली पैसा चाहे बहुत ज्यादा हो या कम हो, उसका हमारे लाइफ के ओवरऑल हैप्पीनेस के साथ इतना भी कुछ मोटा मोटा संबंध नहीं है। उसके बाद हम लोग हमारा जो सब टॉपिक था हैप्पीनेस के बाद, जो कि है मेंटल पीस, मेंटली शांतिमय स्टेट, अभी हम लोग उसके बारे में कुछ समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि मेंटल पीस का क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब कि मेंटली हमको पीस हमको मिलने से हमारा उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मेंटल पीस जो है ये हमारे ओवरऑल एक्सेप्ट के लिए बहुत ही क्रूसियल यानी कि महत्वपूर्ण है। इट कंट्रीब्यूट्स टू बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब कि इससे हमारा जो लाइफ का छोटा मोटा जो स्ट्रेस है, तो उसको हम लोग एकदम बैलेंस स्टेट में मेंटेन कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग आवर मेंटल स्टेट इन ए पीसफुल वे। फिर अगर हम लोग मेंटली पीसफुल स्टेट में हैं तो उससे हमारा जो ओवरऑल रिलेशनशिप्स है उसमें भी काफी सारे इम्प्रूवमेंट हमको मिल सकता है। हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, हमारा जो काम करने का जो हमारा एबिलिटी है, उसमें भी हमको एक बूस्ट हमको देखने को मिल सकता है। फिर ओवरऑल मेंटल पीसफुल स्टेट जो है ये हमको एक हेल्दियर एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ को हेल्प कर सकता है। फिर साइंस ऑफ इनर पीस, मतलब कि हम अंदर से अगर हम लोग खुश हैं या सेटिस्फाइड हैं तो उसका हमको क्या क्या साइन यानी कि लक्षण देखने को मिल सकता है। तो इनर पीसफुल स्टेट में होने का कुछ नॉर्मल सा साइन हो सकता है, जैसे कि ए सेंस ऑफ कामनेस, मतलब कि हम अगर कितने भी मुश्किल स्ट्रेसफुल स्टेज में हैं लेकिन हम उतना स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी हम लोग होने को नहीं दे के हम अपना एक ओवरऑल कामनेस का स्टेट को फील कर सकते हैं। Mr. Ram, फिर Mr. Ram, या sorry to interrupt you. Actually, इट्स your ओके। time of 15 minute has been finished. So then, you please wind up your presentation within या 5 minutes. या
Thank you. Okay, sir. Fine, fine. Okay, fine. Sorry for the extra time, sir. यस, तो अंदर से अगर हम लोग शांत हैं तो उसका हमको कुछ साइन भी मिल सकता है। जैसे कि हमारा थॉट एकदम अच्छे से हो सकता है, हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी भी काफी हद तक लो स्टेट में आ सकता है। एंड ऐसे ही बहुत कुछ। फिर ऐसे कुछ अड़चन है जो कि हमको पीसफुल स्टेट को अचीव करने देते नहीं है। तो उसको भी हमको थोड़ा समझना है कि ऐसा कौन कौन से मुश्किलें हैं। फिर हमारा तीसरा सब टॉपिक है स्ट्रेटेजीज फॉर हैप्पीनेस। इसमें पहला है हमको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हमको करना होगा। मतलब कि हमारे पास अभी के स्टेज में जो भी है, हमको पहले उतने को लेके सेटिस्फाइड महसूस करना है, और उसके लिए भगवान के सामने हमको ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड हमको बनाना है। फिर दूसरा है हमको लोगों के साथ पॉजिटिव संबंध बनाना है। फिर तीसरा है हमको हमारे हॉबीज या इंटरेस्टिंग काम में खुद को थोड़ा एंगेज करना है। फिर अगला जो हमारा सब टॉपिक है कि ऐसा मतलब क्या कुछ टेक्निक्स हैं टू अचीव मेंटल पीस। तो सबसे पहला है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। हम सबको ये अच्छे से मालूम है कि मेडिटेशन बहुत ही अच्छा होता है। फिर दूसरा है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। फिर तीसरा है जर्नलिंग प्रैक्टिसेस। मतलब कि हम प्रेजेंटेशन या मीटिंग को हम अकेले में भी हम उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। फिर अगला हमारा सब टॉपिक है मेंटेनिंग हैप्पीनेस। हम कैसे हम लोग हैप्पीनेस को एक लंबा समय तक मेंटेन कर सकते हैं। तो उसका पहला स्टेप है सेटिंग रियलिस्टिक गोल। मतलब कि हमको छोटे छोटे अचीवेबल गोल बनाना होगा, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग से बहुत ही बड़ा गोल। फिर दूसरा है रेजिलियंस इन एडवर्सिटी। मतलब कि मुश्किल कंडीशन के अंदर भी हमको बाउंस बैक करना सीखना पड़ेगा लॉन्ग स्टैंड करने के लिए। फिर तीसरा है हमको लगातार अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट लाना होगा, नया नया चीज सीखना होगा। फिर कंक्लूजन, अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो हैप्पीनेस एंड मेंटल पीस को अचीव करना इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बाय प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, बिल्डिंग सम गुड relationships, and engaging in mindfulness meditation and ऐसे ही मतलब कुछ छोटे छोटे स्ट्रेटेजी से हम लोग अपना एक लॉन्ग समय के लिए अपना मेंटल स्टेट को
हैप्पी स्टेज में ला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। Thank you, Mr. Ram, for your presentation. So if anyone has any questions for Mr. Ram, then feel free to turn on your mic. Okay, so I guess that was it. Now let us invite our last presenter, Mr. Sujay. Sujay, you can share your screen and you will be getting 15 minutes to present. And if you are not able to complete in 15 minutes, then 5 minutes, then you will get 5 minutes to wrap up your presentation. Okay, So yeah, so then I will start the timer when you are ready. I'm ready. Yes, sir. Yeah, is my screen audible and visible? Am I audible and visible? Is Yes, it visible? yes, Yes. yes, you are loud and clear and your screen is also visible. Now the PPT, the title of my PPT is Just One Life. Just one life. Just one life. Now I'll ask one question with all of you. The one common thing among one common thing in a gorilla and elephant. This this uh, uh, the famous tennis player, and of course, and in Virat Kohli. Can anyone answer? It's the strongest animal, and they are also the fittest athletes. Now now there is a common thing among them all, is that this hint is already given here, the green color. No, sorry. They're all vegan. Oh, sorry, you wanted to answer oil. Sorry, they're all vegetarians. Actually, I was going to answer that like they do not skip that they do not skip their chance of making themselves stronger. So that's why one is the That's strongest animal, and the second column they are the fittest athletes. athlete. Yeah. But I guess I was wrong. No, So no, partly right also, partly right also. Now, according to research, Indians are genetically 3 times more prone to heart disease than others. It is a famous quotation by I think Dr. Devi Dr. Devi Shetty. A few common examples. Saurav the Ganguly, he suffered a heart attack despite being a sports person and exercising every day. Uh, uh, another another famous actor, Puneet Rajkumar, he died in Bangalore. And during the time he experienced a heart attack, he was actually exercising in a gym. And second, now how uh, how do we begin? Watch what you eat. There's a famous quotation by a Greek physician Hippocrates. Let food be thy medicine, and medicine be thy food.
I introduce you all to a whole plant-based diet. Now, what is a whole food plant-based uh, diet? Eating that celebrates plant foods. It it cuts out unhealthy things like animal products, processed food, etc., and avoids added sugars and refined grains that have been shown to increase our risk of heart attacks, strokes, and also cancers. If you combine a whole food plant-based diet with exercise, it will help you. It is proven to increase your lifespan and make you healthy and make you in charge of your health. What are the benefits of a diet of a whole food plant? It significantly lowers the risk of heart disease, prostate cancer, obesity, high blood pressure, and it even reverses heart ailments. And it also is proven to prevent and also treat any diabetes and also decrease your obesity. And in terms of heart health, it is proven to reduce your heart attacks and strokes, improves cholesterol, and better control of blood pressure. In terms of brain health, it because of the high amount of antioxidants, it slows down the process of Alzheimer's disease, and it also helps reverse any cognitive decline. And it also it also reduces proven to also reduce cognitive impairment. In terms of cancers, it is according to the World Health Organization, about one third of the cancers it can be prevented by controlling our diet. For instance, if you eat legumes every day, it may reduce your risk reduce your risk your reduce your risk of your risk of coronary cancer by almost 18%. It also helps to decrease your prostate as well as it also helps decrease your prostate as well as your blood cancer as well as your breast cancers. And it also according to a research by by uh, uh, by uh, by Dr. Dean by Dr. Dean Ornish at UCLA. It showed a whole food plant-based diet. It resulted in actually switching off numerous oncogenes, which 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 is responsible for turning regular cells into cancer cells. If you talk of diabetes, uh, 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 whole food plant-based diet is highly beneficial for for, for preventing for for, preventing as well as treating especially type 2 uh, type 2 diabetes. And it also helps you control your sugars. And say in a few cases it has also reduced need the need of any prescription need for any prescription medicines. Talk of we talk of high blood pressure.
meat, as we know, is loaded with cholesterol and also saturated fats, which leads to poor heart health. Processed meats like processed meats like bacon, sausage have to have an excessive amount of sodium. Uh, on the contrary, a whole food plant-based diet, it helps to lower blood pressure, as well as it helps to prevent any blood pressure from developing in the first place, which in turn leads to better heart health. Weight loss, obesity due due to junk food and fast food. Obesity is obesity is spreading widely, even in India. A plant-based diet, which is primarily a uh, uh, on vegan diet, it is helps to control your weight because of the high amount of the fiber in it. And and as you know, and the whole food plant-based diet, it also helps to improve your helps to improve your sleep. It helps to improve your helps improving your sleep, and which in turn also reduces stress levels. Uh, Better sleep always helps you. It leads to to uh, uh, reduce reduce the amount of stress, and also and also blood pressure. Foods to avoid, or at least minimize on this uh, on this particular diet. Any any meat, especially chicken, turkey, pork, lamb, eggs, and of course dairy products, especially, and fast food, especially French fries, cheeseburgers, hot dogs, chicken nuggets, and avoiding any artificial uh, artificial sugars and sweets, soda, candy, sweet tea, sugar syrup, avoiding white rice, white pasta, bread, etc. And packaged and convenience food, chips, and uh, and processed meats, artificial sweeteners, processed animal products. What is what what is a whole food plant-based diet? Consists of healthy fats and oils. Example almonds, pecans, peanuts, so walnuts, avocado, olive oil moderation. Enough green vegetables, spinach, broccoli, kale, lettuce, whole grains, whole wheat bread, oats, brown rice, pasta, whole wheat tortilla, barley, etc. We must eat enough fruit. We must eat enough fruits like pineapple, grapes, berries, and of course enough amount of vegetables. We must eat enough amount of vegetables also, like sweet potato, mushrooms, Brussels sprouts, etc. And last but not the least, enough consume enough legumes also, like black beans, black beans, chickpeas, flax seeds, chia seeds, lentils, sunflower seeds, etc. And a few other recommendations to improve heart health are to exercise at least 30 minutes every day.
and especially walking, jogging, uh, to watch what you eat. It's more of a plant-based in diet, and adopt de-stress activities such as yoga, yoga, meditation, and also yoga, meditation, and uh, and and mindfulness, and and have ensure you have enough quality sleep every day, at least at least uh at least uh 7 to 8 hours of sleep every day. Begin with, make simple makes make simple make simple to begin with, make simple changes in your lifestyle. Make small changes at a restaurant, and create daily goals, weekly goals, and monthly goals. Makes 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 smart swaps. Example: if you want to if you want to if you want to have a cold drink, exchange it with the fruit juice. With the cold fruit juice. It's almost the same. And then 80% of the cardiology 80% of India's cardiology uh, 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 cardiology diseases are primarily only due to lifestyle. If you if you improve your healthy, if you improve cardiac, improve your heart health, it improves it is proven to change the entire genes of your whole like of your family. Mr. Sujay, sorry to interrupt you. Actually, your time slot of 15 minutes has finished. So, could you wrap up your Yes, that's presentation my in five last slide. minutes? Yeah. Okay, great. So, what are you waiting for? Start today. You have just one life. Love it and love it, care for it, love it, care for, care for it, and enjoy it. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Sujay. So, if anyone has any doubt, feel free to turn on their mic. Okay, so I have one doubt. So, Yes. it seems that even you follow a vegetarian diet, right? Almost. Okay. Okay, yeah, so means what like were you a non-vegetarian Yes, before starting? yes, Okay, I was a non-vegetarian. great, great. But I used to avoid red meat. Okay, Only okay, chicken and I used to eat only chicken and eggs and fish. That's all. got it. But I have reduced also that chicken, and I prefer only fish now. Great. Yeah, and But my brother is a even vegan. He's a pure vegan. oh, He d- he does not eat like cheese or butter or milk. wow, interesting. Actually, even I was a non-vegetarian before I completely shifted to a vegetarian diet. Oh. So, according to you, what changes you have observed? Like after you have completely cut off, or like as you said, where now you are preferring very little non-veg food.
Yes, So, yes. what changes you have observed in your daily life? If you can summarize it in 2 minutes. Our stamina increases a lot, and our patience and our blood pressure is under control. And I'll like to share small example. A small example. Okay, you see the you see the elephant, the elephant and the gorilla. They are the most they are the strongest animals and the most like and the most hardworking people. On the contrary, l- on the contrary, lion and tiger, they eat meat, and so it is proven that they sleep almost 16 hours a day, and or it's proven that and hunt only some 4 to 5 hours a day, and then again sleep. Thank you so much, Sujay. Yeah, you are right. Means even I observe the same when I completely cut out non-vegetarian diet. Mm. Like my stamina increased a lot, and Yes, yes, I am able to focus more yes, properly, and I am always energetic now. yes. Absolutely. So thank you so much, guys. So thank you Thank you for so much. giving Thank your you so much. So thank you for giving your time for this presentations. And that was the end. Yeah, and before we leave, I just have one small request for all of you. Like this presentation will be uploaded on YouTube. So kindly go through the presentation so that even you will understand that where you need improvement. Like for some, there might be improvement in body language. For some, there might be improvement in their like there are various various areas where we can improve. Yeah, and secondly, once this presentation ends, I will request all of you to please share your feedback on the Telegram group, be it good, be it bad. And I really wish that we get some bad feedback so that due to which we are able to improve ourselves even more, so that we are able to uh, serve you people good enough. So that was all. And as Tisa always says, haklao magar pyar se. So see you again in the next exciting presentation events. And uh, do not hesitate to share your you to share your true feedback, be it good, be it bad. So so thank you very much. Bye. Good night. Thank you, sir. Good night. Bye. Thank you, Rohit ji.